Good evening, students. So I'm back again here. I'm Abhijit from South Sikkim. Today we'll be discussing about strategies for enhancement in food production. Before we start discussing about strategies for enhancement in food production, first we need to know why we are going to talk about it. There must be a reason. And what you are going to learn actually after attending to this session. You know, students, that the population is continuously increasing wherever you go. And in India, you know, it is little more. We are the second most populous country of the world. So with the increasing population, there is no increase in agriculturable land. Actually, it is shrinking. Day by day, the land for agriculture that was used in agriculture, actually we call it, it is shrinking. So because of that shrinkage, now we need to produce more and more our food products from that small amount or the less amount of land available. So in this chapter, after we are going to talk about all the details, you will be able to understand the need of this enhancement strategies for having newer strategies for enhancement in food production. Along with this, you will be able to know what are the different types of agricultural practices are there. You will be able to know how we are going to go about increasing the productivity, how we are going to develop pest resistance in plants, how we are going to develop resistance to disease, how we combine the two different varieties to get a superior quality. So these are different areas we'll be discussing. Apart from this, we will be also talking about some latest technology that has increased the varieties, that has developed better varieties of plants and even animals so that we can get better, superior quality of breeds. So students, what comes to your mind when we talk about agriculture? Whenever we say about agriculture, most of you might be thinking about green fields. आपको दिख रहे होंगे हरे भरे लहलहाते खेत, वो चाहे चने के खेत हो, चाहे गेहूं के हो, चाहे चावल के हो, कुछ भी हो, धान के खेत आपको दिख रहे होंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में सिर्फ हमारे प्लांट्स ही इंक्लूडेड है, ऐसी बात नहीं है. इस एग्रीकल्चर में एनिमल्स भी इंक्लूडेड है. तो जब हम पहले डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको फॉलो करने में आसानी होगी. So today we are going to discuss about the strategies for enhancement in food production. So this is the presentation layout. We'll be discussing about animal husbandry, management of farm animals, animal breeding, plant breeding, single cell proteins, and tissue culture. So when we talk about animal husbandry, first we should know what is animal husbandry. See, animal husbandry is the agricultural practice of breeding and raising livestock. Now, breeding and raising livestock. So what we were discussing, that animal husbandry was the agricultural practice of breeding and raising the livestock. And we have already talked about different kinds of animals that are included. Then I have told that extended, that means apart from these animals, we also include fisheries and we also include the birds in this one. Okay. Now, why do we take care of these animals? Obviously, we human beings are very selfish. We are only going to take care of these only if we are going to get some benefits. We are going to get some profit. So what we do, actually, we have been exploiting these bees, silkworms, prawn, crab, etc. for various kinds of products such as silk, wool, honey, and so many other things. But you know, students, that India and China, they are having almost 70% of the livestock of the world.
पूरे दुनिया का 70% लाइवस्टॉक कैटल्स कौन रखता है? इंडिया में और चाइना में। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड को प्रोड्यूस देते हैं हम लोग, जो वर्ल्ड कैटल का इसका जो हम लोग फार्म प्रोड्यूस देते हैं, वो बस 25% है। ऐसा कैसे? 70% हमारे पास है, तो हमारा जो प्रोड्यूस है, ठीक है 70% नहीं, 50% हो, 40% हो, 25%, इतना कम हम लोग दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, तो फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू? तो पुराने टेक्नोलॉजी जो हमारे पास थे, along with that we are going to have some newer technologies। कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को भी हम लोग इसके साथ इंक्लूड करना चाहेंगे, ताकि क्या हो, क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स। अलग अलग तरीके का फार्म्स होता है, उससे में से हम लोग चले जाएंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, शुरुआत करेंगे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में किसके बारे में बात होगी? जब भी हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जरूरी है। आपको पता भी होगा कि ये जो डेयरी फार्म के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? हमारा जो बटर हो गया, हमारे दूध, दही, दूध तो आती है, दही, बहुत तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग इनसे लेते हैं। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ेगा और इसका यील्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे बढ़ा दें हम? इनको कुछ तो देना पड़ेगा, या फिर कुछ और स्पेशल चीजें रखनी पड़ेगी, स्पेशल चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि इन चीजों में इजाफा हो, ये चीजें बढ़े, पहले से हमारा प्रोडक्शन और हमारी क्वालिटी अच्छी हो। तो हम देखेंगे कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अच्छी ब्रीड हो हमारे पास। तो ये ब्रीड क्या होती है, ये भी तो जानना जरूरी है। ब्रीड वो है जो एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही स्पीसीज के हैं वो सारे, लेकिन उसी स्पीसीज के एक और ग्रुप से अलग है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक और चीज पे ध्यान रखिए। हम अपने चारों तरफ बहुत वैरायटी, वी सी वैरायटी ऑफ डॉग्स, तरह तरह के कुत्ते देखते हैं। इन सब की स्पीसीज क्या है? सेम है, सब कैनिस फैमिलियरिस के हैं, लेकिन वो अलग दिखते हैं। जैसे आपका लैब्राडोर अलग दिखाई देगा, डैल्मेशियन अलग दिखाई देगा, स्पेनियल अलग है, आपका बुलडॉग अलग है, लेकिन सारे बुलडॉग एक ही ब्रीड के हैं। उसी तरह सारे डोबरमैन एक ही ब्रीड के हैं। तो ये हो गई ब्रीड। तो सबसे पहले हमें कुछ अच्छी ब्रीड की खोज करनी पड़ेगी। तो अच्छी ब्रीड क्या होगा? अच्छी ब्रीड वो होगी जिसका हाई यील्डिंग पोटेंशियल होगा, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या करेगा, उपज देगा, उसकी पैदावार, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। साथ में वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होना पड़ेगा। डिजीज रेजिस्टेंट क्यों? क्योंकि अगर बीमारी ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। यस, नेक्स्ट इज केयर गिविंग। सो व्हाट इज केयर गिविंग? वी नीड टू सी दैट दे आर हाउस्ड वेल। उनका जो जहां पे उनको रखते हैं वो जगह साफ सुथरी रहे, वहां से वाटर का जो आउटलेट है जो वो भी सही हो, उनको खाना ढंग से मिले। खाने में क्या है? पानी तो देना ही पड़ेगा। हम जानते हैं मैक्सिमम जो मिल्क का है वो क्या है, कंपोजिशन वाटर है, तो एडिक्वेट वाटर दी जाए। खाने में राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, कितना देना है और क्या देना है। ऑब्वियसली इसमें विटामिन ए, कैल्शियम और भी अलग अलग तरीके के फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ इनको वैक्सीनेशन वगैरह भी देनी चाहिए। ये वैक्सीनेशन क्या होता है? जैसे हम लोग टीका लगाते हैं, बोलते हैं ना, ये वैक्सीनेशन है। आज हम लोग कोविड-19 के वैक्सीनेशन की खोज कर रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन क्या है? ये वैक्सीनेशन इसको प्रोटेक्ट करती है कुछ तरह के डिजीजों से, ये देना जरूरी है। इतना तो हो गया। अब इनका जब हम मिल्किंग करेंगे, जब इनसे हम दूध लेंगे, वो मिल्क को लेते वक्त, निकालते वक्त, उसको स्टोर करते वक्त और ट्रांसपोर्ट करते वक्त भी हमें स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन का
ख्याल रखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग नहीं रखते हैं क्लीननेस और हाइजीन का ख्याल, तो फिर ये कंटामिनेटेड हो सकता है और जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छी नहीं होगी। और ये सबको इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में वेटनरी डॉक्टर्स की विजिट बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट वी विल बी प्रोसीडिंग टू द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट? पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि पोल्ट्री क्या है। पोल्ट्री जो है, इट इज ए क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल और बर्ड्स, जो भी आप बोलिए, यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। मतलब इनका हम अगर मीट लेंगे या फिर इनसे एग्स लेंगे, तो जैसे उनका हमको ख्याल रखना पड़ा था, इसका भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। तो कौन है डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, वो जान लेते हैं पहले। नॉर्मली ये चिकन हो सकता है, डक हो सकता है, कभी कभी टर्की, गीज वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम लोग किन किन चीजों का ख्याल रखेंगे। पहले तो सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुइटेबल ब्रीड्स। तो मैंने अभी ब्रीड के बारे में आपको कहा, तो जो ब्रीड हम चूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो ये सुइटेबल का क्या चीज है? डिजीज फ्री तो समझ गए, बीमारी नहीं होनी है। सुइटेबल इंपॉर्टेंट है। सुइटेबल में बहुत तरह की सुइटेबिलिटी आती है। कहां पर है? मान लीजिए एक साउथ इंडिया वार्म एरिया में ग्रो कर रहे हैं हम लोग, एक और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है जो कोल्ड रीजन में है, नॉर्थ इंडिया में है। तो अलग अलग रीजन का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होगा। तो हमें जो ब्रीड चूज करना है वो देखना पड़ेगा उस एरिया के लिए भी सुटेबल है कि नहीं, प्लस हमारा जो उसका आउटपुट चाहिए उसका तो ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा। दूसरा, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस। तो फार्म कंडीशंस जो है प्रॉपर और सेफ होना पड़ेगा। इनको लाइट की जरूरत होगी, इनका एयर प्रॉपरली होना चाहिए, हाइजीन वगैरह मेंटेन करना है। प्रॉपर फीड एंड वाटर, ऑब्वियसली इनमें भी कैल्शियम की बहुत जरूरत होगी, आपको पता होगा, क्योंकि एग का जो शेल है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो कैल्शियम भी इनके खाने में होना जरूरी है। इसके बाद हाइजीन और हेल्थ केयर, जिसके बारे में अभी बात किए थे। इन सबके बाद एक और बात आती है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बर्ड फ्लू नाम का कोई चीज आया था। तो ये बर्ड फ्लू, जैसे आज हमारे पास अलग अलग तरीके के फ्लू हैं, और एक तो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है, आपको पता है, जो हमारा कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो ये ब्लड फ्लू जब आती है, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, जिससे क्या होता है, बर्ड से ह्यूमन बींग्स तक भी आ सकती है, ह्यूमन बींग्स से दूसरे ह्यूमन बींग्स को भी जा सकती है। तो इन सब का अगर होता है तो इन सब से बचा कैसे जाए वो जानना जरूरी है। पहले तो अभी हमने कहा था कि एकदम स्ट्रिंजेंट हाइजीन कंडीशन मेंटेन होना चाहिए। जो हाइजीन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, डायरेक्ट टच नहीं करना है। हमें नहीं पता कि कब इनमें बीमारियां आ गई है, तो उससे हम तक आना है ना। अगर चिकन से चिकन तक जाती है उससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम जान जाएंगे कि ये सारे चिकन इन्फेक्टेड है, और फिर उसको हम लोग किल कर सकते हैं, मिट्टी के नीचे दफना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एनिमल से ह्यूमन बींग में जंप कर जाए, फिर क्या होगा, एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में चला जाएगा, और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में वो फैल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग डायरेक्ट इनका टच नहीं करते हैं। आप ग्लोव्स पहनिए, मास्क यूज कीजिए, और अगर है भी, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं और स्वाइन फ्लू उस समय चला हुआ है मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस समय ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इतने अच्छा से उसको पका ले कि वो जो बीमारी है, उसका जो वायरस है वो किल्ड हो जाए पूरी तरीके से। अगर किल्ड नहीं होता है तब वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हो गई बच्चों डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इसके बाद एक टॉपिक है कि एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल को हम लोग ब्रीड करने जा रहे हैं। क्या है एनिमल ब्रीडिंग? सबसे पहले ब्रीडिंग जो है, मेटिंग टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, मतलब दो एनिमल को मेट कराना है ताकि उससे ऑफस्प्रिंग आ जाए। तो कौन से एनिमल को हम लोग मेट कराएंगे वो जरूरी है। तो उसी एनिमल को मेट कराएंगे जिसका प्रोजेनी हमें पता चलता है कि सुपीरियर हो। सुपीरियर मतलब जो पेरेंट था उससे भी अच्छा हो जाए। तो उसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा सुपीरियर पेरेंट्स। सुपीरियर पेरेंट्स में
ऑब्वियसली दो होंगे, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। मान लीजिए अगर हम एक काऊ के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसा चाहेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और हर एरिया में भी वो सरवाइव कर सके। तो इस तरह का जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। तो एनिमल ब्रीडिंग का डिटेल हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो एनिमल ब्रीडिंग में बच्चों दो तरह की ब्रीडिंग हो सकती है, एक है इनब्रीडिंग, दूसरा है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होती है? इनब्रीडिंग इज मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। मतलब ऐसे ब्रीड को, ऐसे यानी इंडिविजुअल को हम चूज करेंगे जिनका कोई लिंक रहा हो, कब तक, कितने जनरेशन पहले तक, 4 से 6 जनरेशन पीछे चले जाएंगे तो उनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा हो। मतलब अगर मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में ही कॉमन एंसेस्टर है, मतलब पापा हुए, दोनों सिबलिंग है। मान लीजिए उसके पहले जनरेशन में एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर रहा है तो दादाजी हुए। तो इस तरीके का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा हो उनका, अगर 4 से 6 जनरेशन के बीच में, वैसे ऑर्गेनिज्म के बीच में, वैसे इंडिविजुअल के बीच में जब हम मेटिंग कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे आपको किताबों में भी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि आउटब्रीडिंग होता है वो जब हम लोग डिफरेंट ब्रीड्स को एक साथ मिक्स करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। आपको भी थोड़ा पढ़ने के बाद अगर आप ढंग से खुद भी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आउटब्रीडिंग क्यों हमेशा डिफरेंट ब्रीड नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हैं, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स आइदर ऑफ द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड का हो सकता है लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं रहा होगा। कब तक नहीं रहा होगा? 4-6 जनरेशन तक कम से कम उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं रहा है। ठीक है, ये भी आउटब्रीडिंग होगा। एक और हो सकता है, अगर दो अलग अलग ब्रीड को लेते हैं तब भी वो आउटब्रीडिंग होगा, और अगर दो अलग अलग स्पीसीज को ले लेते हैं तब भी वो आउटब्रीडिंग होगा। तो अब हम देखेंगे कि नीचे देखिए आपको कितने तरह के ब्रीडिंग है वो दिख रहे होंगे। पहला है इनब्रीडिंग, जहां मैंने लिखा है कि सेम ब्रीड होना पड़ेगा। दूसरा है आउटब्रीडिंग, तीन एक्चुअली, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखिए तीनों आउटब्रीडिंग ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो आउटब्रीडिंग का पहला वैरायटी हम देखने जा रहे हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड तो होगा लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर नहीं था 4 से 6 जनरेशन तक। एक और तरीका है आउटब्रीडिंग का, वो क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब दो अलग अलग तरीके का ब्रीड्स को हम लोग ले लें। जब हम लोग दो अलग अलग तरीके का ब्रीड लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें हमें फायदा क्या होगा कि दो अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिजम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको हम लोग एक साथ ला सकते हैं। ऑर्गेनिज्म नहीं, दो अलग अलग तरीके का इंडिविजुअल्स का, तो उसको हम लोग एक साथ ला सकते हैं। इसका एक और फायदा है ये आउटब्रीडिंग का, आउटब्रीडिंग में क्रॉस ब्रीडिंग का, एक्चुअली ये एक चीज को हटाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आप बस वर्ड ध्यान रखिए, हम इसके बाद में उस पर जा रहे हैं। तो हो गई क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें डिफरेंट ब्रीड किया, और आखिर में आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम तो दो अलग स्पीसीज में चले जाते हैं, एक ब्रीड का ख्याल ही नहीं रखते, ब्रीड लेना ही नहीं है, दो अलग अलग स्पीसीज ही ले लेना है, तब वो केस में चला जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा था, ये देखिए इनब्रीडिंग। जब हम लोग कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं तो उससे फायदा तो बहुत होता है। क्या क्या फायदा हो सकता है कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करने से? जान लीजिए कि पहले तो हम लोग सुपीरियर मेल फीमेल ले लिए थे, और बार बार जब हम लोग इनब्रीडिंग करते हैं तो हर स्टेप में जैसे ही एक प्रोजेनी आता है, देखते हैं ये प्रोजेनी सही है, अगर देखते हैं नहीं वो प्रोजेनी सुपीरियर नहीं है तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर देखते हैं सुपीरियर है तो फिर उसको एक और सुपीरियर के साथ हम लोग ब्रीड कराते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होने से क्या होती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। और होमोजाइगोसिटी बढ़ने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि सुपीरियर जीन जमा होते रहते हैं, और जो लेस डिजायरेबल जीन है वो धीरे धीरे क्या होता चलता जाता है, हटता चला जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी ऐसी जीन्स
जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, those genes which are harmful to us, वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जा सकता है, उनका एक्युमुलेशन हो जा सकता है। तो इनब्रीडिंग से क्या हो जाएगा, जो रिसेसिव जीन्स था, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स था, वो एक्सपोज हो जाते हैं और कभी कभी इससे प्रोडक्टिविटी वगैरह भी घट जाती है। तो अगर प्रोडक्टिविटी घट जाए, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। एक इलस्ट्रेशन यहां पर है, देखिए बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यहां देखिए एक डोमिनेंट एलील है जो आपको दिख रहा होगा कैपिटल ए में है, और एक है रिसेसिव एलील स्मॉल ए में, आपको दिख रहा होगा थोड़ा लाल कलर वहां पे दिया हुआ है। आप यहाँ पर सांप पर ध्यान न दीजिए, ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है, कोई भी के ऑर्गेनिज्म के लिए ये हो सकता है। इसमें देखिए एक हेटेरोजाइगस था तो कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट था कैपिटल ए। तो इनकी प्रोजेनी हुई, दो तरह की प्रोजेनी हो सकती है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब कैपिटल ए के साथ फिर से एक और कैपिटल ए सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ एक और कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट मींस टू हेटेरोजाइगस को जब हमने एक साथ इनब्रीडिंग करा दिया, तब देखिए हमें एक होमोजाइगस रिसेसिव मिल गया जो रेड कलर में दिखाया हुआ है। उसका मतलब क्या हो गया, ये जो हार्मफुल जीन था इसलिए हमने उसको रेड से दिखाया, ऐसे भी रेड डेंजर ही होता है। तो ये हार्मफुल जीन था, वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा हमारा, एक तो हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन घट कर सकता है, प्रोडक्टिविटी वगैरह घटा सकता है, और कभी कभी ये ऑर्गेनिज्म के लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है कि ये सर्वाइव ही ना करे प्रॉपर्ली, ये भी हो जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमको दिख रहा है कि नहीं इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी घट रही है, आप तुरंत उसका आउटब्रीडिंग करा दीजिए। आउटब्रीडिंग कराते वक्त हम क्या करेंगे, एक और सेम ब्रीड का ही लेंगे आउटब्रीडिंग का। इसमें एक्चुअली आउट क्रॉसिंग में चले जाएंगे हम लोग। आउट क्रॉसिंग मतलब क्या कहा था हमने, ब्रीड तो सेम होगा लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। फिर से देखिए एक कैपिटल ए के साथ जैसे ही उसका मिक्सअप हो गया और फिर से हमें क्या मिल गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल गया। और इससे हमारा क्या फायदा हुआ, इससे हमें यह फायदा हुआ कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रही थी उसको हमने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। चलिए अब चलते हैं, एक और टाइप था, ये तो आउट क्रॉसिंग चली गई। अब हम लोग जाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग में। बच्चों क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग में हम लोग दो अलग अलग ब्रीड को ले लेते हैं। तो दो अलग अलग ब्रीड को अगर हम लोग लेते हैं, दोनों का सुपीरियर ऑब्वियसली हम देखेंगे, तो उनका हम लोग एक कंबाइन करके एक अच्छी सी सुपीरियर क्वालिटी प्रोजेनी उसमें से पा सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, जैसे हमने कहा आउटब्रीडिंग का एक और है, आउट क्रॉसिंग हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग स्पीसीज को एक साथ हम ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे। जनरली बच्चों नेचर में ये बहुत ही कम होता है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स आर्टिफिशियली ऐसा करा सकते हैं, ठीक है, प्रमोट कर सकते हैं कि ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो, या फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है म्यूल। आप लोग अगर जानते होंगे तो म्यूल कैसे होता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मेल डोंकी मतलब मेल फादर था और फीमेल हॉर्स, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जो प्रोजेनी आती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूल। लेकिन इससे क्या फायदा होता यह है कि हॉर्स का और डोंकी का दोनों का कुछ कुछ कैरेक्टर इनमें रहता है। तो व्हाट वी कैन गेट दैट द गुड क्वालिटीज of both the species, both of the horse and of the donkey in a same single species, that is the mule। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए म्यूल जो है ना वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ऐसा क्यों, ये तो हो ही सकता है, जब प्रोजेनी आई गई है तो वो भी अपने अपने जैसे दूसरे म्यूल के साथ वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता है। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि मियोसिस में दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। तो दोनों जब एक साथ आते हैं, होमोलोगस है, एक ही जैसे हैं,
तो उनमें पेयरिंग होती है और पेयरिंग होने के बाद वो म्यूसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, गैमेट ढंग से बनता है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होती है, एक तो हॉर्स का क्रोमोसोम अलग था, इसका क्रोमोसोम अलग है, तो इन दोनों में पेयरिंग नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, प्रोजेनी जनरली स्टेराइल होते हैं और इसमें मोस्टली मेल्स तो बिल्कुल ही स्टेराइल होता है। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल वगैरह फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड इसके साथ नहीं, ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं, अपने पेरेंट जो भी थे, जिस ऑर्गेनिज्म से आए थे उनके साथ। जैसे आपने एक और नाम सुना होगा म्यूल छोड़ के, लाइगर सुना होगा, उसमें लायन फादर है और टाइगर अगर मदर है तो बच्चा क्या होता है, लाइगर होता है। उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, टाइगॉन, टाइगॉन में टाइगर फादर है और लायन मदर है। तो एनीवे इस तरह का इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग जा सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा देख लेंगे कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया गया था, हॉर्स और हम लोगों ने डोंकी का जो कॉम्बिनेशन किया गया और उससे हमें क्या मिला, म्यूल मिला। तो ये हो सकती है। अब ये आपको ये पिक्चर दिख गया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और बातें करेंगे कि ये चीजें कैसे सफल हो रही है, कैसे हम लोग इसको इंड्यूस करते हैं, वो जानना जरूरी है। तो इस इंड्यूस में हम बात करेंगे एक जो है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, नेचुरली नहीं होने दे रहे हैं, हम उसमें कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग इज प्लेइंग some kind of interference is there. What is that? We will know. So in control breeding experiment, actually we go for a technique known as artificial insemination. आर्टिफिशियल एक्चुअली हमारा क्या था, हमारा मेन मोटो है कि सुपीरियर पेरेंट्स हो और प्रोजेनी भी इससे अच्छा ही बने। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फीमेल तो लेते हैं जो सुपीरियर फीमेल है, और फीमेल के जो जेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग जो स्पर्म सीमेन डालेंगे, वो सीमेन हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एनिमल से हम लोग ले लेते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक्चुअली देयर आर मैकेनिज्म्स द वे वी कैन गेट द सीमेन, वी कैन गेट इट। तो वो लेते हैं और आर्टिफिशियली फीमेल के बॉडी के अंदर उस सीमेन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब वो सीमेन में स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज करेगा, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट अ प्रोजेनी। ये तो हो सकता है। तो ये ऐसा करने की क्यों जरूरत है, जब हम ऐसे दो ऑर्गेनिज्म को मेट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इसका फायदा इसलिए है, अभी एक एक करके देखते हैं हम लोग। एक चीज है, मान लीजिए एक सुपीरियर मेल आपके पास प्रेजेंट है, जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट के एक किनारे में है, एक पर्टिकुलर जगह में है, और दूसरे किनारे में उसी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, उसी स्टेट का भी हो, एक फीमेल को हम चाहते हैं कि इसके सीमेन से फर्टिलाइज किया जाए, इसके स्पर्म से। कैसे करेंगे, इस एनिमल को लेकर जाएंगे या तो उस एनिमल को लेकर आना है। तो इस चीज को हम लोग बड़ी इजीली हटा सकते हैं। वी जस्ट कलेक्ट द स्पर्म्स, और अगर सामने ही है तो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और वो प्रिजर्व हालत में उसको जस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। किसको, गैमेट्स को, जो सीमेन था। और फिर उस जगह पे जाकर हम लोग उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेनी का वेट कर सकते हैं, और प्रोजेनी आ जाती है, हमारा डिजायर्ड प्रोजेनी। एक और चीज है, हम देखते हैं कभी कभी कि एक और तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। वो क्या है, इसमें इंसेमिनेशन की बात अलग है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे थे एक सुपीरियर मेल, उसी का हमको चाहिए था गैमेट। इसमें हम बोल रहे हैं एक सुपीरियर फीमेल है और उसका ही हमें प्रोजेनी चाहिए। ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, मेल का क्या हो सकता है कि मेल का जो हम लोग सीमेन लेते हैं, उसको हम लोग काफी सारे अलग अलग काउस को या फीमेल एनिमल्स को वो फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन फीमेल, द बेबी इज गोइंग टू ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो फीमेल का तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फीमेल का हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका हम लोग एग ले ले, जैसे इससे स्पर्म ले रहे थे, तो उससे हम लोग क्या कर लेंगे, एग निकाल लेंगे। तो एग निकालने के लिए एक ही निकालने का नहीं हम लोग वेट करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स देते हैं,
हार्मोन देने की वजह से क्या होता है, जो एक एग प्रोड्यूस हो रहा था, एक की जगह पे 6-8 एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर हम इंसेमिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाते हैं करीब 16 to 32 स्टेज में, उसको हम लोग निकाल लेते हैं और सरोगेट मदर में चले जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल काउ या नॉर्मल फीमेल, उसके एम्ब्रियो में ले जाके उसको इम्प्लांट कर देते हैं। अब क्या होगा, बायोलॉजिकल मदर क्या था, ये फीमेल थी, सुपीरियर फीमेल, और हमने तो सीमेन लिया ही था सुपीरियर मेल से। अब ये जो क्या बोलते हैं बर्थ देने वाली है, जिसके बॉडी में ये ग्रो कर रहा है, सरोगेट मदर है, उसका जीन्स इसमें जा ही नहीं रहा है। द बॉडी इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ऐसा हो जाने से हम क्या देख पा रहे हैं, एक सुपीरियर फीमेल से हम 4-5 अलग अलग हम लोग एग निकाल के 4-5 अलग अलग सरोगेट मदर में वो डाल के उसको हम लोग फायदा ले सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही एग निकाल लेते हैं, ये सुपीरियर फीमेल फिर से तैयार हो जाती है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये हो गया बेटा हमारा आर्टिफिशियल व्हाट टू से methods of artificial techniques in which that we are going to use in interspecific hybridization and for reproduction in the animals. इसके बाद अगर आप लोग को समय हो गई हो, थोड़ा सा समझ में आया हो, हम चाहेंगे कि नेक्स्ट में चले जाए। नेक्स्ट में क्या है, बी कीपिंग। बी कीपिंग क्या है, बी हनी बी है ऑब्वियसली। अब हनी बी से हमें मिलता क्या है, क्यों उसको हम लोग रियर करेंगे, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम तो जानते ही हैं हनी बी से हमको लेना क्या है, उसका रियरिंग करेंगे। इसलिए रियरिंग करेंगे ताकि उससे हमें हनी मिले और उससे क्या मिले, वैक्स मिले। अब हनी बी से हम हनी लेते हैं, वैक्स लेते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन एक और बात है, हमें पता है ये हनी बी वो कहां से कलेक्ट करती है, वेयर फ्रॉम इट गेट्स द हनी, इट गोज टू फ्लावर्स। तो जब फ्लावर्स तक जाती है, इट कलेक्ट्स द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स से अपना नेक्टर लेकर आती है। तो ये नेक्टर को ही वो हनी में चेंज कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो वो जब जाते हैं, वो एक और अच्छा काम कर जाते हैं हमारे लिए। क्या कर जाते हैं, वो पॉलिनेशन कर जाते हैं। तो सरसों के खेत वगैरह, एप्पल वगैरह के अगर आसपास में आप हनी बी कल्चर करें, इसको रखें, बी हाइव्स को रहने दें, तो उससे क्या होगा, पॉलिनेशन भी अच्छा होगा और हमारी उपज भी अच्छी होगी। तो अभी हम देखेंगे हनी बी कितने कितने तरह के हैं, देख लेते हैं बच्चों। हाँ, बी कीपिंग ऑब्वियसली इट इज नोन एज एपीकल्चर। अब हम देखते हैं कितने स्पीसीज ऑफ हनी बीज को जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें है एपिस मेलिफेरा। तो ये एपिस मेलिफेरा जो है एक्चुअली एक इटालियन बी है, और इसको यूरोपियन बी भी बोलते हैं। ये स्टिंग भी कम करती है, इसकी क्वालिटी भी, हनी की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनफ हनी ये प्रोड्यूस करती है। एक और है जो हमारे इंडिया में, ये बाकी तीनों ऐसे ही मिलते हैं। कौन सा, एपिस डोर्साटा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक बी। ये बच्चों बड़ी बड़ी होती है, यहाँ देख सकते हैं आप एपिस डोर्साटा, ये बड़ी बड़ी होती है और ये काटती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्या करती है, इसका हनी प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं एपिस इंडिका, इसको हम लोग एपिस सेराना इंडिका भी बोलते हैं। ये जो सेराना लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली एपिस इंडिका है, ठीक है। तो ये एपिस इंडिका इंडियन बी है, ये छोटी है, किससे, एपिस डोर्साटा से छोटी है, रॉक बी से छोटी है, और ये डोसाइल होता है। डोसाइल मतलब सबमिसिव है। ये इसको आप आराम से आप इसका पालन पोषण कर सकते हैं, इसको आराम से रख सकते हैं, ये ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करेगी और ये आपको प्रोडक्ट भी अच्छा देगी। हनी भी ये काफी प्रोड्यूस करता है। एक और है एपिस फ्लोरिया, जिसको लिटिल भी बोलते हैं, ये बहुत ही कम हनी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसमें एक चीज तो हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी है हमारी एपिस डोर्साटा, उसके बाद देखिए एपिस मेलिफ्लेरा है, उसके बाद होता है हमारा एपिस सेराना इंडिका, और बाद में आती है एपिस फ्लोरिया। अब बी कल्चर एक्चुअली कैसे करना है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है अगर आप बी को ढंग से कल्चर करना चाहते हैं। तो सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए इन सब चीजों को आपको जानना जरूरी है। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, तो कौन सा बी, अभी हमने देखा अलग अलग स्पीसीज है, उनका हैबिट, उनका नेचर आपको जानना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमको बीहाइव ऐसे जगह पे रखना है जहां आसपास अच्छे फूल हो। If suppose there is no flowers around, no good quality flowers, where from they will collect nectar? If they are not collecting good amount of nectar, they are not going to produce good amount of honey or good quality honey. तो कहाँ रखना है वो भी हमें जानना जरूरी है। इसके बाद कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स पूछोगे आप कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ हनी बीज है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग देखे होंगे कि हनी बी का जो बीहाइव है उसमें वो ज्यादा दिन नहीं रहती है, वो लोग छोड़कर भी चले जाते हैं। जब बहुत बड़ा हो जाता है हाइव, तब क्या होता है, वो क्वीन बी वो एक जो हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसके वजह से क्या होता है, बाकी कोई भी क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग फेरोमोन बोलते हैं, एंटी क्वीन सब्सटेंस सिलेक्ट करती है। इससे क्या होता है, जो वर्कर बीज होते हैं वो दूसरा ब्रूड चेंबर नहीं बनाते हैं और रॉयल जेली दूसरे को नहीं खिलाते हैं, तो दूसरा क्वीन आता ही नहीं है इस एंटी क्वीन सब्सटेंस की वजह से। लेकिन जब बहुत बड़ा बी हाइव हो जाता है, तब वो एक थोड़ा सा एंटी क्वीन सब्सटेंस को सिक्रेट करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। और जब ये बंद कर दे, तब क्या हो जाए, तो फिर एक दूसरा क्वीन आने का चांस हो जाता है। और दूसरा क्वीन जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है और वो अपना न्यूक्लियल फ्लाइट, मतलब जो जिसमें वो लोग स्पर्म्स रिसीव करते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, पुरानी भी छोड़कर चली जाती है, साथ में कुछ वर्कर्स को भी ले जाते हैं। तो ये स्वर्मिंग बोलते हैं, तो इनको पकड़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में बी हाइव का मैनेजमेंट क्या होता है, अलग है। और एक क्या है, हैंडलिंग एंड कनेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स। तो बी वैक्स क्या है, हनी तो हम लोग जानते ही हैं, स्वीटनिंग एजेंट है, आजकल तो दवाइयों में भी ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट हमें इसमें से कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं। बी वैक्स क्या है, ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करते हैं, पॉलिशिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, आपके शू पॉलिश भी है, इन सब में हम लोग बी वैक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन कैंडल वगैरह जनरली नहीं बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाने से कोल्ड डे में ये बी वैक्स क्या हो जाता है, क्रैक डेवलप कर जाता है। तो ये हो गया बेटा बच्चों बी कीपिंग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बी कीपिंग के बाद फिशरीज। तो फिशरीज में यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। एक आप ध्यान से देखिए, एक शिप जैसा आपको दिख रहा है, वहां पर कुछ मछलियों को पकड़ी जा रही है जाल से। दूसरी जगह पे हम देख रहे हैं छोटे छोटे एनक्रोचमेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खाने बने हुए हैं जिसमें मछलियों का ख्याल रखा जा रहा है या मछलियों को बड़ा किया जा रहा है। तो मैंने ये दो पिक्चर क्यों डाला, ये दो पिक्चर इसलिए डाला, इससे आपको पता चले कि फिशरीज दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है कैप्चर फिशरीज, दूसरी हो सकती है कल्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज क्या है, कैप्चर मतलब आप चले जाइए, नदी से जाके पकड़ कर ले आइए, समुद्र में जाके पकड़ कर ले आइए, कहीं भी आप जाइए और उसको पकड़ कर अगर आप ले आ जाते हैं सीधे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्चर फिशरीज। आपने उसको ग्रो नहीं किया था। लेकिन अगर आप छोटे छोटे तालाब बनाते हैं ऐसे छोटे छोटे कैप्टिविटी में, और फिश को लाकर, फिश के सीड्स को लाकर उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर फिशरीज। अब फिश किताबों में किताब में आप देखेंगे जनरली हम लोग दो अलग अलग मैराइन और फ्रेश वाटर की बात करते हैं। क्या क्या फिश है जो हम लोग खाते हैं? फ्रेश वाटर में आती है कतला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मिर्गल और कॉमन कार्प। इसी तरह आप चले जाइए हमारा मैराइन में। मैराइन में क्या दिख रहा है? हिल्सा, सार्डाइन्स, मैकरेल, पॉम्फ्रेट्स, सैल्मन, ये सारे कुछ फिशेस जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं वही दिखाई गई है, बाकी मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाई है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो बच्चों फिश आपने देख लिया, कल्चर फिशरीज हो सकती है, कैप्चर फिशरीज हो सकती है। अब इसके बाद आपको एक और तरह का फिशरीज के बारे में पता होना पड़ेगा कि कौन सा तरह का पानी यूज हो रहा है। फ्रेश वाटर में अगर होती है तो वो फ्रेश वाटर फिशरीज कहलाएगी। मैराइन का तो आपने देखा, मैराइन फिशरीज कहलाएगी। एक और तरह का फिशरीज होता है, क्या है? ब्रैकिश वाटर या फिर ईस्चुराइन फिशरीज, जहां पर नदी ना समुद्र से मिलती है। दैट एरिया वो हाई टाइड लो टाइड की वजह से वो समुद्र का पानी आता है, और जब अंदर आती है तो यहाँ
सॉल्ट जो है, इस ईस्चुरी का सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ईस्चुरिन वाटर बढ़ जाता है, फिर वो चली जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ कम हो जाता है। तो ये ईस्चुराइन या फिर जो ब्रैकिश वाटर है, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर और मैराइन के बीच का है। तो कुछ फिशेस ऐसे भी हैं जो इन ब्रैकिश वाटर या फिर ईस्चुराइन वाटर्स में पाए जाते हैं। तो फिशरीज किस तरह का वाटर यूज हो रहा है उसके हिसाब से होता है। फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है, और हमारे मैराइन हो सकते हैं। और फिश कल्चर जब हम करते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग पिशिकल्चर बोलते हैं एक्चुअली। और एक और टर्म है एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर और पिशिकल्चर, पिशिकल्चर में फिश खाने के लिए और कुछ और भी एनिमल्स होंगे जो खाने में यूज हो रहे हैं, वो सारे पिशिकल्चर में आते हैं। तो एक्वाकल्चर में क्या आते हैं? एक्वाकल्चर में वो सब आते हैं जो पानी में ग्रो कर रहे हैं और हम लोग उसको ग्रो करा रहे हैं। उसमें प्लांट भी आ सकते हैं, और उसमें से सिर्फ खाना नहीं, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें से ले सकते हैं। तो बच्चों एक और चीज देखना, कभी कभी ना जो हम लोग तालाब होता है, तालाब में हम लोग फिश जब ग्रो करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कई तरह का फिश एक साथ ग्रो करे। क्यों? इससे क्या फायदा हो सकता है? मान लो तालाब की गहराई इतनी है, यहां से यहां तक है, अब इसमें तो खाना अवेलेबल है, तो एकदम ऊपर में जो खाना है, ठीक है, वहां पर भी अवेलेबल है खाना, और कुछ खाना धीरे धीरे नीचे आता है और एकदम नीचे है। अब मेरे पास ऐसा फिश है जिसका मुंह ऐसा ऊपर की तरह अपटर्न माउथ है, ये क्या कर सकता है? ऊपर का खाना खा सकता है सरफेस का, ये नीचे का खाना खा ही नहीं सकता। तो ऐसे फिशेस कहाँ रहेंगे? ऑब्वियसली सरफेस फीडर्स है, ऊपर में खाएंगे। कुछ फिशेस है जिनका मुंह एकदम ऐसा ही है, ये मिडिल का खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिशेस जो कि हमारा इसमें है, क्या बोलते हैं, रोहू है, मृगल, कतला, ये सारे हैं, इनका अलग अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे आपको। तो ये क्या करेंगे, रोहू जो है बीच में खाना खा रही है, कतला ऊपर में खाना खा रहा था, सिल्वर कार्प भी ऊपर में खा रहा था। नीचे खाने के लिए मृगल है हमारे पास, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, क्योंकि उनका मुंह ऐसा है। तो ऐसे तीन तीन चार चार पांच पांच स्पीसीज को एक साथ जब ग्रो करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इससे फायदा क्या होता है? जितना भी खाना अवेलेबल है उस वाटर बॉडी में, उसका क्या होता है? प्रॉपर यूज हो जाता है। तो इसके साथ बच्चों अब हम लोग आगे शिफ्ट करना चाहेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग, जैसे एनिमल्स का ब्रीडिंग की हम बात कर रहे थे, उसी तरह प्लांट का भी हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। क्यों ब्रीडिंग करेंगे? ऑब्वियसली जैसे अब एनिमल्स में बेटर क्वालिटी प्रोजेनी हमें चाहिए, प्लांट्स में भी ऐसी ही हमें जरूरत है। तो कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है प्लांट ब्रीडिंग का, ये जरा हम लोग देख लेंगे। पहला स्टेप है बेटा बच्चों, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब अब जब हम ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमें तो चाहिए कि कुछ अच्छे जीन्स हमें मिले, ठीक है। तो ये जीन्स कहाँ मिलेंगे? हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास कुछ एनिमल्स हैं उसी ब्रीड का जिसके पास वो अच्छी जीन है, वो भी हो सकता है। कुछ तो वाइल्ड वेराइटीज में भी हो सकते हैं, कुछ हम लोगों को उस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में भी हो सकता है। तो क्या करना है, हमें इन सबको कलेक्ट करना है। तो जब हम लोग की इन पूरा कलेक्शन करते हैं, ये सारे जितने भी एलील अवेलेबल हैं एक जीन का, सारे जीन का, एक क्रॉप का, उसको बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो मैं फिर से दोहराता हूं, द एंटायर कलेक्शन having the diverse allele of all genes in a given crop is called germplasm collection। मतलब अगर हम लोग कोई टोमेटो की बात करते हैं, तो टोमेटो की जितनी भी जीन है, जितने भी वेराइटीज में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, सबका कलेक्शन अगर हम लोग करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो ये वेराइटीज को हमें कलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। वैरायटी तो आपके पास अवेलेबल है, अब हो गई है जर्मप्लाज्म कलेक्शन में, लेकिन बहुत सारे अवेलेबल है, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा कि किसको किसको आपको एज ए पेरेंट यूज करना है। तो आपने चूज कर लिया अपने डिजायर्ड प्रोजेनी के हिसाब से, जैसा आपका डिजायर है वैसे ही आप पेरेंट चूज करेंगे। आपने चूज कर लिया, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको आपस में इनब्रीडिंग करा सकते हैं, प्योर लाइन्स डेवलप कर सकते हैं। चलिए पेरेंट्स मिल गया, अब क्या करना है? अब करना है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सिलेक्टेड पेरेंट्स। मतलब जो पेरेंट्स हमें मिली हुई थी, उनके हमने चूज किया था,
उसके बीच में हमें क्या करना है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है, मतलब दोनों पेरेंट का हाइब्रिडाइजेशन कराना है। वो कैसे कराना है, आप लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे कि हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं, मतलब सीधी से है, एक का पोलन लेना है और दूसरे के स्टिग्मा में उसको हमें क्या करना है, डस्ट करना है। और ताकि ये दूसरे जो अनवांटेड वैरायटी के पोलन उसमें ना गिर जाए, इसलिए कुछ स्टेप्स यूज हुए थे, हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर के अनवांटेड पोलेंट्स को गिरने से रोक सकते हैं। चलिए, हमने क्रॉस हाइब्रिडेशन करा दिया। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स। अब जो प्रोजेनी आ गया उसको हम लोग बोल रहे हैं रिकम्बिनेंट है। तो वो जो प्रोजेनी आ गया, जरूरी नहीं है कि आप दो पेरेंट को आप एक साथ में लाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और आपका जो डिजायर्ड था वही आ जाए प्रोजेनी में। आप 100,000 टाइम्स करेंगे, हो सकता है उनमें से एक ऐसा निकले जो आपका डिजायर्ड था, क्योंकि सब तो चांस हो रहा है, वो एक साथ जो डिजायर्ड जीन आएंगे जरूरी है नहीं। तो क्या करना है, हमें वेट करना है और सिलेक्ट करना है और टेस्ट करना है कि वो रिकम्बिनेंट्स सही है या नहीं। जब हमें वो मिल जाते हैं सुपीरियर रिकम्बिनेंट, उसको हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में टेस्ट कर लेते हैं कि वो कैसा है और उसका कैसा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोड्यूस सही है कि नहीं, हमारे जान जो चाहत वाले जो कैरेक्टर्स है वो सब उसमें है कि नहीं, वो सारे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं, फिर से उसमें हम लोग क्या करते हैं, होमोजाइगोसिटी डेवलप करते हैं। कर लिया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवर्स। कल्टीवर्स मतलब ये वैरायटीज है यहाँ पर। तो अभी एक क्वेश्चन मुझे भी आ रही है कि ये सेकंड जो पॉइंट था उसमें भी टेस्टिंग लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में भी टेस्टिंग लिखा है, तो सॉरी फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट दोनों पॉइंट में टेस्टिंग लिखा हुआ है। तो ये दो बार टेस्टिंग क्या है, तो पहली जो टेस्टिंग थी वो तो हमारे लेबोरेटरी कंडीशन में हुई थी। अब जो आखिरी टेस्टिंग होने वाली है हमारी, इसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे कहां पर ले जाके, ओरिजिनल सीधे फील्ड्स में ले जाएंगे पहले, और फील्ड्स में ले जाके वो भी कहां पर, अलग अलग एरिया के ले जाएंगे, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हम लोग ले जाएंगे और अलग अलग लोकेशन में इसकी टेस्टिंग करेंगे। कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन तक इसकी टेस्टिंग करेंगे। और जब टेस्टिंग करते हैं हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी अवेलेबल ब्रीड है हमारे पास उससे ये अच्छा हो। अगर उससे अच्छा होता है तभी जाकर हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका कमर्शियलाइजेशन करेंगे। अगर उससे अच्छा नहीं होता है तो इसका कमर्शियलाइजेशन करने का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट ब्रीडिंग। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे, हाँ, कि क्यों कर रहे हैं, एक एक को हम लोग देखते हैं। पहला, प्लांट ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड। ज्यादा यील्ड के लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करना चाहते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुने होंगे, जो एमएस स्वामीनाथन जिसके फादर थे, उसमें क्या हुआ था, उस समय 1960s में हमारा जो प्रोडक्शन था, हमारा जो यील्ड था वो बहुत कम हुआ करता था। उससे क्या हो जाता था, हमारा जो डिमांड था वो पूरी नहीं हो पाती थी, हमें बाहर से लेना पड़ता था। तो बाद में ऐसा हो गया कि हम अपनी डिमांड तो पूरा कर लिए और बाहर वालों को भी एक्सपोर्ट कर दिए। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखा जाए तो आपको एक डेटा देते हैं। इसमें जो व्हीट थी, व्हीट हमारा 1960s में 11 मिलियन टन, 11 मिलियन टन से हम लोग कर पाते थे, जो कि 2000 आते आते 75 मिलियन टन में चला गया। राइस 35 मिलियन टन से चला गया 89.5 मिलियन टन। तो ये सारे हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे वो जानना जरूरी है। ये सब हुआ ऐसे कि उस टाइम में अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप की गई। उसमें से एक होता है सेमी ड्वार्फ वैरायटी। तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ये है कि एक फुल ग्रोन है, इतना साइज है, एक ड्वार्फ है, बीच वाला जो साइज है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ से फायदा क्या होता है, सेमी ड्वार्फ थोड़ा थिक भी होता था, ठीक है, और ज्यादा बड़ा हो जाने से, अगर इतनी बड़ी पेड़ हो और यहाँ पे ज्यादा वेट आ जाए फसल के वजह से, तो ये आसानी से गिर सकता है विंड से। लेकिन सेमी ड्वार्फ वैरायटी मीडियम साइज का होता था,
फसल तो उतना ही लग रहा है, लेकिन ये जल्दी गिरता नहीं है। आप सिंपली देख सकते हैं, एक छोटा सा स्टिक को आप इजीली पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी अगर स्टिक हो तो उसको इजीली बैलेंस हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की गई। इन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ने हमारा पैदावार को क्या कर दिया, काफी बढ़ा दिया। इसी तरह शुगर केन में भी हुआ। जो नॉर्थ इंडिया के शुगर केन थे, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ ऑब्वियसली करते थे, नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो कम था, यील्ड कम थी। तो क्या किया जाए, साउथ इंडिया वाले जो थे उनमें शुगर कंटेंट अच्छा था, यील्ड ज्यादा था, थिकर स्टेम्स थे, उनके साथ प्रॉब्लम, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करते। तो आपस में दोनों को मिक्स किया गया और ऐसी वैरायटीज डेवलप की गई कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो करे वो, और साउथ इंडिया वाली जो अच्छी क्वालिटीज थी, जो थिकर स्टेम का और शुगर अमाउंट ज्यादा होने का, वो सब भी उसमें मिले। इसके बाद 1 2 3 हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे हमारा समय खत्म होने से पहले, ताकि हम आप लोगों के क्वेश्चंस ले सके। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, वहां अभी हम लोग देख रहे थे यील्ड बढ़ाने के लिए, अब हम देख रहे हैं कि हम ब्रीडिंग कराएंगे ताकि डिजीज ना हो, तो डिजीज रेजिस्टेंट हो। डिजीज रेजिस्टेंट के लिए हम 2 वैरायटी लेंगे, एक जिसका उपज अच्छा था, जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी वो, एंड अनदर वैरायटी जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, हमें मिल गया डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, और उसकी उपज भी हमारे हिसाब से है। तो ये डिजीज रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि किसी और वैरायटी में हो, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, म्यूटेशन से। म्यूटेशन आप जानते हो, पहले वाले क्लास सेशन में हमने डिस्कस किया था, म्यूटेजेंस होते हैं, वो रेडी गामा रेस हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो जीन में बदलाव कर देते हैं। तो हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, और ऐसा कोई बदलाव अगर आ गया जो डिजीज रेजिस्टेंट देता है, तो अब उस प्रोजेनी को हम ले लेते हैं, वो हो गया हमारा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, और उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया। एक और है, नेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग, फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स। मतलब ऐसे वैरायटी हम लोग डेवलप कर लें जो क्या होगा, जो पेस्ट से हमारे प्लांट्स को बचा सके। इसमें क्या हो सकता है, पेस्ट से बचा सकने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या तो मॉर्फोलॉजिकल हो, मान लीजिए कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस में क्या होता है, उसका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कांटे हैं उसमें। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा So students, welcome back after that. So we were discussing about different reasons why we went for plant breeding. So we have already discussed about pest disease resistance. Next was the insect resistance. Insect resistance कैसा हो सकता है? कैक्टस हो सकता है, उसमें कांटे हैं तो उसको कोई खा नहीं सकता, ऐसा कोई डेवलप कर दीजिए। ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल हो सकता है कि उस प्लांट को खाने से मर जाए जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो भी हो सकता है। या फिर ऐसा कोई उसमें पॉइजन तो हो ही सकता है, ऐसा कोई उसमें मान लीजिए उसके ऊपर वाला जो क्या कहते हैं लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उस मान लीजिए हेयरी है जो खाने में अच्छा नहीं लगता हो या खाने में दिक्कत करती हो, तो कोई भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग सेम होगा। लास्ट इसमें एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर द इम्प्रूव फूड क्वालिटी, उसको देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा एससीपी और उसके बाद डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर, फिर हम आप लोगों का क्वेश्चंस लेंगे। तो ये था लास्ट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। होता क्या है ना, हमारे देश में ऐसे हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना तो वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सही तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। जो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो नहीं है। तो उनको जब ये सब चीजें नहीं मिलती है तो उनमें कुछ डेफिशिएंसी, डिजीज वगैरह हो सकते हैं। इस तरह का खाना जिसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उस वजह से डिजीज वगैरह आने की वजह से इसको हम लोग नाम दिए हैं हिडन हंगर। तो क्या कर जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है आयरन रहे, विटामिन ए रहे, आयोडीन, जिंक, ये सारी चीजें जब नहीं होती है तो लाइफ स्पैन रिड्यूस हो सकती है। देयर कैन बी मेंटल रिडक्शन इन मेंटल एबिलिटीज। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं एक और प्लांट ब्रीडिंग तरीका इंट्रोड्यूस करने का जिसमें क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जिससे हम लोग ऐसा ब्रीडिंग कराते हैं कि हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हेल्दियर फैट्स ये सब रहे। क्या क्या देखते हैं एक्चुअली इसमें, प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी अच्छी हो, विटामिन कंटेंट ज्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, मिनरल कंटेंट ज्यादा हो, ऑयल कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो, ये सारा चीज हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन में देखते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चले जाएंगे सिंगल सेल प्रोटीन में। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? सिंगल सेल ऑब्वियसली सेल ही है, जो भी हम लोग खाते हैं वो सेल्स है। यहां हम लोग एक छोटा सा चीज देखेंगे कि इन जनरल अगर आपको मीट तैयार करना हो, ठीक है, 1 केजी अगर आपको तैयार करना हो तो उसके लिए आपको 3 से 5 केजी ग्रेन्स खिलाने पड़ते हैं। 10 केजी तक भी ग्रेन्स खिलाने पड़ सकते हैं कुछ एनिमल्स को। मतलब इतना खाना खाने के बाद आपको मीट कितना मिला? 1 केजी मिला। तो मीट हम खा ही क्यों रहे हैं? मीट हम इसलिए खा रहे हैं कि उसमें से हमें प्रोटीन मिले। So if I get an opportunity to get that protein from some other resource, मीट नहीं खा के, तो क्या हो जाएगा?
हमारा ये सीरियल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो ग्रेन्स खिला रहे थे वो भी कम हो जाएगा और हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अगर आप जानते हो, मतलब डेटा की किताबों में एनसीईआरटी में ही होगा, देखोगे कि एक 250 केजी 250 केजी का काऊ, ठीक है, वो दिन भर में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन तैयार कर रहा है। और अगर आप एक 250 ग्राम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें जो कि मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस है, वो क्या कर देगा, एक दिन में आपको 25 टन तैयार करके दे देगा। मतलब इतना छोटा इनपुट है, इतना कम अमाउंट है, लेकिन हमें प्रोटीन काफी ज्यादा मिल रहा है। प्लस प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है इन सेल्स में, किसी किसी में तो 40%, 60-70% तक प्रोटीन होते हैं सेल का। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट में, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इनफ प्रोटीन्स कलेक्ट कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन से। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस लेना है। लास्ट टॉपिक था बच्चों हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स, मान लीजिए प्लांट है जो नॉर्मल प्रोसेस से ग्रो करता है, काफी समय लग जाता है, वो 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, फिर सीड्स आएंगे, मतलब फ्लावर सीड्स होगा, फिर सीड से नया प्लांट आएगा। हम क्या कर सकते हैं, वही प्लांट का एक पोर्शन ले लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स और एक अच्छा सा सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट अवेलेबल करा सकते हैं, जिसमें वो क्या करेगा, वो एक सेल से काफी सेल्स बनेंगे और हर एक सेल से क्या हो सकता है, एक प्लांट आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और जो प्लांट का जो पोर्शन हमने लिया था उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट। और ये प्लांट की जो क्वालिटी है प्लांट सेल्स की, कि एक पोर्शन से पूरे प्लांट को डेवलप कर जाना, इसको हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस पे एक तो हो गया कि जल्दी होगी, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा है, मान लीजिए एक डिजीज प्लांट है, उस डिजीज प्लांट से हम एक नॉर्मल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि डिजीज है, पूरा प्लांट डिजीज है, सारे सेल्स डिजीज है, ठीक है, तो कैसे होगा, तो किताब में देखोगे कि मेरिस्टेम को हम लोग ले लेते हैं और मेरिस्टेम से हम लोग नया प्लांट ले सकते हैं। फिर आप सवाल करोगे सारे प्लांट सेल्स डिजीज है तो मेरिस्टेम कैसे बच गया, मेरिस्टेम बच गया क्यों, क्योंकि जो वायरस वगैरह होते हैं ना, ये वायरस फ्री प्लांट्स, इसलिए हम लोग मेरिस्टेम में ये वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते उन सेल्स में, क्योंकि इनका जो क्या कहते हैं एक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, ये डिवाइड बहुत जल्दी करते हैं, प्लस इनके वहां तक डेवलप नहीं होता है हमारा जो वास्कुलर टिश्यूज है, क्योंकि वास्कुलर टिश्यूज से ही वायरस जाएंगे, तो वास्कुलर टिश्यू है ही नहीं, मेरिस्टेम तक पहुंचा ही नहीं। दूसरा, वो इतना जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, उसमें ये ग्रो नहीं कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम लोग वायरस फ्री सेल्स भी बना सकते हैं। एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग तरीके का सेल लेते हैं, दो अलग अलग सेल ले लेते हैं सोमैटिक सेल्स, उसका बाहर वाला सेल वॉल हटा देते हैं। बाहर वाला सेल वॉल जब हम लोग हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसमें सिर्फ प्रोटोप्लास्ट रह जाता है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल कैसे हटाओगे, मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज एंजाइम दो, सेल वॉल हट गया। अब वो सेल वॉल हटने के बाद दो प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं और उनको फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने का भी तरीका होता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन वगैरह हो सकता है। तो फ्यूज हो जाने के बाद दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होके एक नया तुम्हारा प्लांट डेवलप उसमें से हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हुआ किया भी गया है, जैसे पोटैटो और टोमेटो को मिक्स किया गया था ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोडक्ट आई वो उतना कमर्शियली वायबल नहीं था, इसलिए उसको आगे हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। तो इसके साथ बच्चों आज हमने कोशिश की कम समय में ही हर टॉपिक को इस चैप्टर का कंप्लीट करने का, कवर कर गए हम लोग थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपके सवाल हैं अब आप दे सकते हैं, हम जाएंगे क्वेश्चन आवर में। One question is there, sir, कि what is meant by blue revolution? Yes, very good question, students. Types of revolution. Green revolution. Sir, we already know it was related to this. आ रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन थी जो प्लांट से रिलेटेड थी, सिल्वर रिवोल्यूशन थी एग से रिलेटेड है, उसी तरह ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से थी, ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड है
हमारा फिश से, ठीक है, एक्वाकल्चर से, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन था हमारा फिश कल्चर से, एक्वाकल्चर से, उसको हम लोग ब्लू रिवोल्यूशन में करते हैं। इसी तरीके का एग से था सिल्वर रिवोल्यूशन, मिल्क से व्हाइट रिवोल्यूशन है, प्लांट्स वगैरह का जो हमारा था उसको हम लोग बोलते थे ग्रीन रिवोल्यूशन। जी सर, अगला सवाल। One question is there कि can coronavirus be transmitted from humans to animals? See, already scientists have till now they are reporting that generally it does not affect any animals. But again, there is a report that it has come to us from the bats. So we don't know if the reverse can happen as of now. But till now, all the reports they are saying that it is not affecting the animals around us. Okay. Another is, what is meant by embryo transfer technology? Yes, embryo transfer technology. Actually, what happens when we were discussing about multiple ovulation embryo transfer, then we were discussing that the embryo, the developing embryo, we are taking out from the uterus of the organism, and we are implanting it in some other organism. This is known as embryo transfer. Another question is, how many types are there in fishery? Types of fisheries. See, when we discuss types of fisheries, we should know that on what basis we are talking about the types. Suppose we are talking about the types on the basis of the mechanism we are going for the fishery. It can be culture fisheries, capture fisheries, only two types. Again, I was telling you that if it is, we are talking about the water, what kind of water the fishery is taking place. It can be fresh water, it can be brackish water, it can be marine fisheries. So it varies on the kind or on the basis of the, on what basis we are going to discuss the types. Yes, sir. Yeah, then what is meant by inbreeding depression? Yeah, inbreeding depression. I will again try to share the screen. Okay, stop, no need. What I was telling you, that when inbreeding is what? Mating between individual who had a common ancestor in the last 4 to 6 generations. So when in the last 4 to 6 generations they had a common ancestor, we are continuously breeding them. That is known as inbreeding. In this case, sometimes some harmful genes are exposed, which were recessive. Because they are recessive in heterozygous condition, they were not exposed. But continuous inbreeding will lead to homozygous conditions. In homozygous conditions, those genes can be exposed. Also, sometimes they will result in reduction of the productivity. So that is known as, this is known as inbreeding depression. How can we overcome this inbreeding depression? We can overcome this inbreeding depression just by going for an outcrossing. Yeah. Then another is, why do self-pollinated crops not show the ill effects of inbreeding depression? Self-pollinated crops, you cannot say that self-pollinated crops are not showing the ill effects of inbreeding depression. It depends on what kind of self-pollination is going. Self-pollination means the same plant. You are taking the same plant, the gamete pollen grain from the same plant, and you are having the egg ovules from the same plant. So what is going to happen? There is no external gene that is going to enter there, and homozygosity, if it is already there, that will be shown. If there is no homozygosity of the deleterious genes, then there cannot be an issue of inbreeding depression. But in this case, what happens? Self-pollinated plants, the genes are exactly the same. When we were talking about inbreeding, then the genes were exactly not the same. There we took, we took two different individuals who have different genes, but one kind of gene that came into homozygous condition because of this kind of inbreeding. That was the problem. In self-pollinating plants also, in case it happens
that the result is a homozygous condition of a T-litrus gene, then also it will also show some kind of ill effects. Yes, sir. Next question. How can we improve the success rate of fertilization during the artificial insemination in animal husbandry? Okay, success. You very good question. Actually, whatever is the case, generally the success rate is very less in case of this artificial insemination or in this artificial methods of reproduction. What we can do for this? First of all, we should ensure that the semen we are taking, that should be of good quality. Now, what is good quality? We have already talked about the breed. The breed was good. But this semen, the motility of the sperm is there or not, the sperms are in healthy conditions or not. If that is ensured, then there is a chance of fertilization. One more thing, if the ovulation is not taking place in that period, that ovum is also having a viability. If the ovum is having a viability of 24 hours, today ovulation has taken place, I am inseminating it after 3 days, there is no chances of fertilization. So that also has to synchronize, and we should, the technicians actually, this is done by the human beings only, the technicians should also take care about the methods they are using to inseminate the organism. I hope that was clear. Yeah. Yes, sir. What is meant by hidden hunger? Yeah, hidden hunger, very good. I have also touched this, students. So what happens in our society, we have all kind of people, right? Now, if you go to the poorest of the poor ones, they also eat, obviously. But if you see what they are eating, they are mostly eating carbohydrates. They are not having enough money to get fruits, to get pulses, or to get meat, or all those things. That's why they are lacking in some important nutrients that is needed for their development. Unless and until they are provided with those nutrients, their body will not develop properly. Even there can be mental retardedness. So this thing, when we are eating, that means our stomach is full. We are not hungry visibly, but we are not getting sufficient nutrients, required nutrients. That is known as hidden hunger. Sir, one more is there. What is single cell protein? Yes, single cell protein. Single cell protein we were discussing. As I have told, that microbes are these days, now we have already started eating these mushrooms and all. So it has accepted. So scientists have gone one step further. They have gone for the microbes. That microbe, now what can be that microbe? Very good question. I should tell you. What can be that microbe? It can be a bacteria. It can be fungi. It can be yeast. Whatever it is. It can be a virus. No. Why it cannot be a virus? Because virus, we don't call it as a cell. When we say a single cell protein, then it should be a cell. So what I was telling, these microorganisms, they can reproduce very fast, and the content of the protein in these organisms is very high. But we should ensure that these microorganisms are not harmful. You know, in our stomach, in our alimentary canal, we have various millions and millions of microorganisms, but they are not all disease causing. So these microorganisms were not disease causing. So if we get these microorganisms non-disease causing, which are not harmful, and they are having enough amount of protein, so these are used as food, and we call this as single cell protein. Sir, spirulina is an example. Yes, sir. She is Katyani from UP. She is asking, how are soma clones different from somatic hybrids? Soma clones different from somatic hybrids. Very good question, student. Actually, I missed that soma clones. What is soma clones? In soma clones, this is a plant. I am taking one cell, and that cell is multiplying. Okay. So all are clones of this, the initial cell that we took. But what is in case of somatic hybridization? Here I am taking two protoplasts, two different cells that can be from different species also. As I was telling, in case of tomato, we took one from potato,
one from tomato. So those two cells, we removed that cell wall by using cellulase enzyme, and then we got the naked protoplast. So these two, they have fused and they have formed into one. This is somatic hybridization. Soma clone was just multiplying, but here in somatic hybridization, two different has been fused. One more thing, this one is having genes from both the species. That was in this case from tomato and from the potato. Also the ploidy will be different. Yes, sir. Sir, one question is coming. Why RBC nucleated in camel? What is this? RBC? Nucleated I also in couldn't get. why RBC nucleated in camel? I don't know, sir. What is the question? Question is very vague. Okay, sir, we will move to the different. What is the Okay. difference between outbreeding and outcrossing? Outbreeding and outcrossing. Outcrossing. Very, yes. Actually, when I was defining the outbreeding, I have told you that outbreeding can be between the same breed, but no common ancestor till 4 to 6 generation. That is known as outcrossing. Means same breed, but no common ancestor for 4 to 6 generation. One type of outbreeding, outcrossing. Another type is crossbreeding. Two breeds are combining. That is crossbreeding. Another one, interspecific hybridization. Two species. So crossbreeding and interspecific hybridization. These all come under outbreeding. There are types of outbreeding. Outbreeding includes all three. Plus crossbreeding includes, outcrossing includes only one breed, but not with common ancestors. Yes, sir. Sir, due to this time constraint, we will take this last question. Yes, sure, sir. Yeah. What kind of areas are suitable for practicing apiculture? Yes, very good question. The question I have discussed a little bit, that the areas which are having enough amount of fresh flowers, they should be included in the they should be selected for the apiculture. And why? Because they need to collect enough amount of nectar, and that should be collected from fresh flowers. Once they have collected those from those flowers, then they can give sufficient amount of and good amount of good quality of honey. One more thing, they should not be disturbed if you are keeping in an area where these these apiaries they are disturbed by human beings or some other animals, or they are getting some kind of obstructions because of the weather, then that may not give good results. Thank you, sir. And thank you, learners. I hope you must have enjoyed the class and most of your queries has been resolved. Now we will meet you tomorrow at 1 p.m. with another class. Till then, thank you. Thank you, students. See you tomorrow, 1 p.m. Bye-bye.